Yes, our question is, define a class students as follow. Data member instance variable, name, name, age, write with me. Name, age, marks of 3 subjects, M1, M2, M3. Then maximum, average. Okay, these are the instance variable. Yes, after it, member methods. First is parameterized constructor. See, default नहीं है, parameterized. Parameterized constructor to initialize the data members. Then after that, second one is to accept the detail, to input the value, means member method. Method to input the value. देखो यहाँ पे method का नाम नहीं है, तो whatever name you want to give, you can give. Okay, then third, method to compute, method to compute the average and maximum out of 3 marks. Out of 3 marks. ठीक है. Then fourth, method to display all the details all the details. All the details means name, age, maximum, average. Average in tabular format. In tabular format. In tabular format. In tabular format. And write the main method to call all above methods. This is your question. Look at here. Instance variable class name बनाया मैंने students. Okay, public class students because it is given in the question. So student. Everyone pay attention. A student. Then the instance variable name, marks, M1, M2, M3, age and maximum marks. These are your integer. Okay, as the data members data type are not given, so you can use according to you. Okay, then average लिया है double में.
Now the constructor, parameterized constructor. Parameterized constructor means name of the constructor will be the same as the class. So student string n int a int b age के लिए marks के लिए these variable I have taken and average. But देखो minimum, maximum और average हमें यहाँ पे नहीं देना चाहिए because हमें उन्हीं की वैल्यू इनिशियलाइज करनी है जो कि हम डायरेक्ट यूजर से इनपुट ले सकते हैं। जो हमें कैलकुलेट करना है उनकी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैं हटा देती हूँ। ओके, तो नेम को इनिशियलाइज कर दिया मैंने n से, एज को a से, m1 को marks 1, marks 2, marks 3 like that. Okay, then after it accept. So it is method void accept. Okay, public void accept. This is the method to accept the age and all. ठीक है, अच्छा, तो पब्लिक void accept. यहाँ पर स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, एंटर द नेम, नेम एंटर करवाया, एंटर द एज, एज एंटर करवाई, then marks of first subject, then the second subject, then the third subject. Okay, marks enter होने के बाद void calculate average equals to m1 m2 m3 को प्लस करके 3.0. That's very good. Keep remember, point लगाना जरूरी है, otherwise it will give you इंटीजर वैल्यू और फिर उसको डबल में कन्वर्ट करके दे देगा। नहीं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए 3.02. देन द मैक्सिमम यू कैन फाइंड आउट मैथ डॉट मैक्स, बट यहाँ पे हमने मैक्सिमम ना ऑलरेडी उसमें डिक्लेयर किया हुआ था, इसमें इंटीजर में, है ना। तो इट मे हैपन कि वो हमें यहाँ पर मिस्टेक दे, एरर दे, क्योंकि हमने इसको किस में डिक्लेयर किया है, मैक्सिमम को इंटीजर में, और हमें इस वेरिएबल को फिर किस में डिक्लेयर करना चाहिए, डबल में। इफ आई वांट दिस मेथड मींस दिस प्रीडिफाइंड मेथड ऑफ मिनिमम और मैक्सिमम, तो हमें यहाँ पर इसे एज अ डबल डिक्लेयर करना चाहिए। ठीक है, फिर अब यहाँ पर ये देखो मैथ डॉट मैक्स m1 कॉमा मैथ डॉट मैक्स m2 m3, देखो कितना अच्छा मेथड बनाया है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। देखो सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, मैथ डॉट मैक्स की m2 और m3 से निकाला, फिर उनमें से जो भी मैक्स होगा उसका फिर m1 के साथ होगा। ठीक है, और मैक्सिमम हमको मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद विल राइट दी, इतना समझ में आया। आफ्टर द मैक्स वी विल राइट द डिस्प्ले। पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। अब मुझे डिस्प्ले में क्या करना है, सिर्फ डिस्प्ले मेथड will going to have all these statement to be displayed. System dot out dot println टेबुलर फॉर्मेट में देना है, तो ऐसे दे देते हैं, नेम बैकस्लैश टी एज बैकस्लैश टी, सीधे मैक्सिमम मिनिमम डाल देते हैं, मैक्सिमम बैकस्लैश टी देन एवरेज। ओके, देन अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इन वेरिएबल्स की वैल्यूज डिस्प्ले करा देते हैं। नाउ यार नेम के लिए मैंने वेरिएबल लिया है दैट इज नेम, राइट, बैकस्लैश टी को प्लस लगा करके डबल कोट्स में दिस इज, देन एज, देन प्लस डबल कोट्स में, देन प्लस मैक्सिमम, आई थिंक स्मॉल है,
देन प्लस बैकस्लैश टी। देखो हमेशा मुझे बैकस्लैश टी को इसमें डबल कोट्स में रखना पड़ेगा बिकॉज इट इज द एस्केप सीक्वेंस, राइट? आई होप ऑल द वेरिएबल आई हैव टेकन करेक्टली. Then after it, public static void main, public static void main. ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्टूडेंट्स obj इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट्स. अब देखो अगर मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाते वक्त, तो मुझे क्या पास करना पड़ेगा? n की वैल्यू, a की वैल्यू, मार्क्स 1, मार्क्स 2 और मार्क्स 3 की वैल्यू, राइट? तो मैं यहाँ पे नेम डालती हूँ, देन एज, देन मार्क्स 1, 100, 100, 100, मार्क्स 3. ओके, देन अब मैं यहाँ पे अगर कॉल नहीं करती हूँ इनपुट मेथड, तो इनपुट नहीं होगा, ठीक है? चलो नहीं करते हैं. obj डॉट कैलकुलेट, देन obj डॉट डिस्प्ले. ये है प्रोग्राम. ओके, नाउ कंपाइल. पब्लिक स्टूडेंट्स एवरेज डबल कोट्स. ओके, main method close, class close. students स्टूडेंट्स. क्या हुआ स्पेलिंग का? ओके, सब जगह मैंने स्टूडेंट कैपिटल एस कैपिटल किया है. ओके 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 ओके, यहाँ पे भी ओके. सी केस सेंसिटिव है इसलिए कैपिटल किया है तो कैपिटल में ही करना होगा, स्मॉल किया है तो स्मॉल में ही करना होगा. कैलकुलेट का स्पेलिंग CALCULATE, कैलकुलेट. नाउ एग्जीक्यूट द प्रोग्राम. void main. ये देखो एवरेज आ रहा है, एज आ रहा है, नेम आ रहा है. एक्सेप्ट नहीं हो रहा, इनपुट नहीं हो रहा क्योंकि मैंने एक्सेप्ट को कॉल ही नहीं किया इसमें. ओके, अब अगर मैं यहाँ पर एक्सेप्ट कॉल करती हूँ तो ये वाली वैल्यूज ओवरराइड हो जाएगी. obj डॉट